ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಓ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ, ರಾಜದಿ ರಾಜದೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದೇ ಭಯ, ಅದೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಭೆಯಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಲೇಮೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾದರಿಯಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ WSS ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಆರಾಧನೆಯ, ಅವರ ಸಮಯ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MYF ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಂತ ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಯೌವನಸ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಬೀಜವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿ ಕರ್ತನೆ, ವಿಶಾಲ ಮರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು MYF ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ
ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ವಚನದ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡುವ ದೇವರನ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಇಂದಿನದ ವಚನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ವಚನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ, ಕೃಪೆಯೇ, ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ, ಕೃಪೆಯೇ, ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಆದಾಯದಿಂದಲ್ಲ, ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಲಂತಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆ. ಯಾವ ಗಣನೆಗೂ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆಯೇ, ಕೃಪೆಯೇ, ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ, ಕೃಪೆಯೇ, ಕೃಪೆಯೇ
छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। बच्चा जो है धीरे धीरे बढ़ता है, अपने फैमिली ट्रेडिशंस को जानता है, कल्चर को जानता है, उनके परमेश्वर के बारे में वो जानता है, और धीरे धीरे जो है बढ़ते बढ़ते जो है वो जवानी के पायदान पर आ जाता है। और ऑब्वियसली जवान होता है तो विवाह के बारे में जो है घर वाले सोचते हैं, तो उसका विवाह भी हो जाता है। फैमिली कोई रिलेटिव में जो है उसको लड़की देखा जाता है और बहुत अच्छे रीति से जो है उसका विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ दिन के बाद जो है परमेश्वर का बोलते ना एक आवाज उसको सुनाई देता है। ही लिसन्स टू गॉड। उस समय पर ऐसा था कि परमेश्वर की आवाज को सुना जा सकता था या परमेश्वर का आभास उनको सही रीति से होता था। लेकिन बहुत ही खुशी से जिंदगी, तो बहुत कुछ था उसके पास, अच्छा फैमिली, बहुत अच्छा वेल्थ, सब कुछ उसके पास था। लेकिन शादी के बहुत साल हो गए, लेकिन एक खुशी उसके जीवन में नहीं थी, वो है संतान। यस, हर रोज वो प्रार्थना करता, फैमिली ऑब्वियसली दोनों पति पत्नी प्रार्थना करते, लेकिन बहुत साल बीत गए, लगभग बोलते ना उम्मीदी जो है, उम्मीद ही उन्होंने छोड़ दिया होगा कि इतना वर्ष जो है बिना संतान के उन्होंने जीवन को जिया। लेकिन अचानक जो है फिर एक बार परमेश्वर की आवाज को वो सुनता है और परमेश्वर उससे कहता है मैं तुझे संतान दूंगा और बहुत ही ब्लेसेड पुत्र को मैं देने वाला हूं, बहुत ही आशीर्वादित पुत्र को देने वाला हूं, जिसके जरिए जो है बहुत कुछ तू पाने वाला है, तेरा नाम बहुत ऊंचा होने वाला है, बहुत कुछ जो है। ये परमेश्वर की ओर से उसको एक विजन मिलता है, एक आवाज होता है, वो आवाज को सुनता है। लेकिन फिर भी ये वादे के बाद भी बहुत साल तक बिल्कुल भी कोई भी बच्चे का आसार उसके जीवन में नहीं है। पता नहीं कितनी नाउम्मीदी, कितना निराश वो दोनों हुए होंगे। लेकिन सच में जैसा परमेश्वर का आवाज उसने सुना था, करीब 100 साल का वो हो जाता है, अभी तक बच्चा नहीं है, लेकिन उस समय पर परमेश्वर जो है उसको संतान की प्राप्ति देता है, संतान का सुख देता है। पत्नी जो है 90 इयर्स के ऊपर है और पति जो है 100 इयर्स का है, और एक बच्चे का वरदान उनको मिलता है और बहुत ही आशीर्वादित बच्चा उनको मिलता है। 100 इयर्स, कितना अद्भुत ये चमत्कार उसके जीवन में होगा। ये बहुत साल पुराना मैं एग्जाम्पल को दे रहा हूं, लेकिन सच्चा ये जो बात, ये एग्जाम्पल है। लेकिन इसके बाद जो है बहुत ही आश्चर्यचकित या बहुत ही जो है ना दिल दहलाने वाला बात जो है उसके जीवन में होता है। कुछ साल के बाद वो बच्चा बढ़ रहा है, ना धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, बहुत अच्छे कुछ वर्ष बीत गए हैं। उसके बाद वापस से परमेश्वर का आवाज को वो सुनता है। परमेश्वर उससे क्या कहता है पता है? परमेश्वर कहता है कि तू इस बच्चे को मेरे लिए छोड़ दे, यानी मेरे लिए बलि दे दे। बलि देना समझते हैं उस समय पर, शायद पता नहीं, कुछ लोग शायद ये प्रथा मानते थे। इसको आवाज आया कि मुझे ये तेरा बच्चा चाहिए। परमेश्वर दिया है और परमेश्वर उसको मांग रहा है कि ये बच्चा मेरे लिए बलि दे। अब तक शायद आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बता रहा हूं। जी हाँ, मैं अब्राहम के बारे में बता रहा हूं, जो उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय में हम लोग इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 22, जहां पर अब्राहम आवाज को सुनता है कि तेरा पुत्र जो इसहाक है उसको मेरे लिए बलि दे दे। और उसको बहुत ही अच्छी रीति से बताया जाता है कि तू इस पहाड़ पर जा और वहां पर एक वेदी को बना और वहां पर अच्छे रीति से जो है प्रार्थना पूर्वक जो है, आराधना पूर्वक जो है इसको मेरे लिए जो है बलि दे दे। सैक्रिफाइस योर ओनली सन। और अब्राहम क्या कहता है? एक वर्ड वहां पर अब्राहम ने नहीं कहा। अब्राहम दूसरे दिन सुबह उठता है, वो तैयार होता है। ऐसा लगता है कि शायद अर्ली मॉर्निंग, इंग्लिश बाइबल ऐसा कहता है, बहुत सुबह वो उठकर जो है तैयार होता है अपने बच्चे को बलिदान देने के लिए। कितना दर्दनाक ये
बात होगा कि परमेश्वर का वरदान इतने सालों के बाद मिला है और अब परमेश्वर बोल रहा है कि उसको वापस दे दे, उसको बलि दे दे मेरे लिए। लेकिन अब्राहम एक भी बार नहीं सोचता है कि क्या करूं मैं, किस तरीके से जाऊं मैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अगर अच्छे से वचन को पढ़ेंगे, बहुत सुबह वो उठता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो रात में शायद उसको नींद ही नहीं आया होगा, क्योंकि कल मुझे मेरे बच्चे को लेकर जाकर बलि देना है, उसको मारना है, उसको खत्म करना है परमेश्वर के लिए। कितना दुख भरा ये बात होगा, कितना कठिन वो रात होगा उसके लिए। लेकिन फिर भी वो उठता है, तैयार होकर जो है उसके बच्चे को लेता है, अपने दो तीन सेवकों को लेता है, अपने गधे पर बैठकर जो है वो चलता है। और जो स्थान पर बलिदान देने के लिए कहा गया है, वो स्थान उसको 3 दिन लगता है वहां पर पहुंचने के लिए, 3 days। जी हाँ, 3 दिन उसको लगता है वो जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। परमेश्वर जो पहाड़ पर उसको बलि देने कहता है, वो तीसरे दिन वहां पर पहुंचा करके परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए परमेश्वर ने उसके विश्वास की किस तरीके से परीक्षा लिया। एक तो कहा कि इस बच्चे को मेरे लिए बलिदान दे दे, और उसके बाद जो है उसको 3 दिन ट्रैवल करने लगाया। ऐसे ही नहीं कि सुबह उठ के उसको काट के दे दिया, नहीं, परमेश्वर ने उस जगह को बताया जो 3 दिन, मुझे ऐसा लगता है ये 3 दिन जो वो जर्नी किया, पता नहीं कितने विचार उसके मन में आया होगा, उसके दिमाग में, अरे परमेश्वर ऐसा क्यों, परमेश्वर ये तो आपका वरदान है, ये तो आपका ब्लेसिंग से, पता नहीं क्या क्या आया होगा। जस्ट अपने आप को जो है उस स्थान पर आप रख के देखिएगा कि क्या क्या मैं सोच सकता हूं, क्या क्या मेरे दिमाग में आएगा जब इस तरीके से परमेश्वर मुझसे कहता है। हालांकि इस समय पर परमेश्वर आपको अपने बच्चे का बलिदान तो नहीं मांगेगा, लेकिन सिर्फ अब्राहम की जगह पर रुक के सोचो। लेकिन अब्राहम बोलते ना, ये 3 दिन शायद उसके जीवन में इसलिए आया था, परमेश्वर ने शायद इसलिए वो 3 दिन दूर का जर्नी उसको बताया कि कहीं अब्राहम वापस ना चले जाए, कहीं अब्राहम अपने माइंड को चेंज ना करे, कहीं अब्राहम का विश्वास डगमगाए। दिस इज द टेस्ट ऑफ फेथ। ये परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा बहुत कठिन रीति से लिया, लेकिन अब्राहम बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। हर विचार को उसने दबा दिया, हर सोच को उसने हटा दिया और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसके वादे के ऊपर भरोसा रखा। उस परमेश्वर ने कहा था इस संतान के जरिए जो है अनेक संतानें आएंगी, अनेक जनरेशंस आएगा, और जो है बोलते ना बहुत बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया। उसको याद था वो कि परमेश्वर जो है इसके जरिए भी कुछ कार्य करने वाला है। दैट वॉज द फेथ। उसने वादे के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिसने वादा किया वो परमेश्वर के ऊपर उसने ध्यान दिया। प्रॉमिस वॉज अ सन, प्रॉमिसर वॉज अ गॉड। उसने गॉड के लिए अपने बच्चे को छोड़ दिया और लेकर चला गया। 3 दिन, पता नहीं कितना परेशानी उसको हुआ होगा, कितना दर्द उसको हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, वो चलते गया। और जब पहाड़ के नजदीक में वो आया तो बोलते ना, उसके सेवकों को, वचन कहता है उसके सेवकों को उसने कहा मैं और मेरा बच्चा जाकर वर्शिप करके आते हैं, आप लोग यहीं पर खड़े रहो। और उसने अपने जो है सामान से कुछ लकड़ियों को लिया और फिर कोयले को लिया और वो ऊपर चढ़ रहा है माउंटेन के ऊपर। और रास्ते में उसका बच्चा पूछ रहा है, पापा आपने तो लकड़ी तो ले लिया, कोयला तो ले लिया जलाने के लिए, सब कुछ ऑल्टर बनाने के लिए, लेकिन हमने कुछ लैम नहीं लाया, कोई एनिमल, कोई जानवर नहीं लाया कि हम लोग क्या बलिदान करने वाले। अब्राहम एक शब्द नहीं कहा, चलते जा रहा है। पता नहीं कितना दर्दनाक वो उसका पहाड़ चढ़ना होगा, सबसे मुश्किल जो है वो बात करने को आज जा रहा है और लेकर जा रहा है। लेकिन एक क्षण के लिए भी जो है वापस नहीं मुड़ा, वो गया ऊपर। और हम सभी लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो चढ़ के ऊपर गया और जो है अपने उसके बच्चे को जो है बांध देता है वहां पर और उस वेदी के ऊपर, और अपने चाकू को निकालता है और उसकी गर्दन पर जो है मारने जाता होता है कि वो और एक बार आवाज सुनता है परमेश्वर का, अब्राहम अब्राहम, नहीं, इसको मारना नहीं, ये तेरे विश्वास की परीक्षा थी। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक लैम्ब उसको मिलता है, जानवर को काट के जो है वो परमेश्वर को बलिदान देता है। ये कहानी तो हम सभी लोग जानते हैं। दिस वॉज अ टेस्ट ऑफ फेथ। लेकिन आज भले परमेश्वर हमें संतान को जो है वापस बलिदान जो नहीं मांगता है,
लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर आज भी जरूर हमारी परीक्षा को लेता है। और आज भी इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बहुत ही एक बात मुझे सिखाना चाहा है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस बात को सीखें। आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा, बहुत बार हमें बहुत अच्छा आशीष मिलता है लेकिन हम उस आशीष को अनुभव नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि हमें परमेश्वर के लिए वो मजा छोड़ना है। परमेश्वर आपसे कुछ तो भी वैल्यूएबल चीज चाहता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं आपने ये एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, मैंने अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस को किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, और आप में से बहुत सारे लोग जो है ये परमेश्वर की आवाज को सुना है और शायद अनसुना कर दिया है। क्योंकि सच में जो हमें चीज पसंद है, अगर परमेश्वर वो मांग ले, वो दान दे देने को बोले या उसको छोड़ देने को कहे, तो शायद हमसे नहीं होगा। मैं बुरी चीजों की नहीं बात कर रहा हूं, गलत आदतों की नहीं बात कर रहा हूं, मैं अच्छे चीजों की बात कर रहा हूं। यहां पर संतान का ब्लेसिंग परमेश्वर ने दिया है। आपके जीवन में ऐसा बहुत सारा ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर ने दिया है। अब अगर वो ब्लेसिंग्स को छोड़ देने के लिए कहा जाए कि मैं ये ना करूं, कि ये चीज जो है छोड़ दो, तो क्या मैं करूंगा? क्या आप स्व इच्छा से उसको छोड़ देंगे जैसे अब्राहम ने किया? अरे उसने तो संतान को छोड़ दिया। आज हो सकता है आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसी परीक्षा को ले रहा है। यस, बहुतों के जीवन में किस तरीके से, कुछ एग्जाम्पल्स के रीत में मैं बताना चाहूंगा। हो सकता है आपका कोई हॉबी है, कोई पसंदीदा चीज है जो आपको बहुत पसंद है, और आप बार बार ये डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं कि ये मत कर, क्योंकि ये जो है परमेश्वर, बोलते हैं ना, परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर और इसमें चुनना पड़ रहा है, परमेश्वर की आराधना में और इस बात में चुनना पड़ रहा है। वो हॉबी परमेश्वर ने दिया है, वो इच्छा परमेश्वर ने दिया है, वो अच्छा आदत हो सकता है, लेकिन कई बार परमेश्वर के लिए छोड़ने के लिए वो आवाज हमने सुना है, लेकिन शायद हमने अनसुना कर दिया। हो सकता है वो आपका कोई टैलेंट है। यस, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, बहुत अनेक टैलेंट्स है। शायद परमेश्वर आपसे वो टैलेंट को वो तेरा त्याग देने को कह रहा है, विच इज वेरी इंपॉसिबल फॉर अस। क्योंकि कई बार हम लोग गाना गाते हैं, टैलेंट अपना शो करते, भले परमेश्वर की गीतों को गा रहे हैं, लेकिन खुद की महिमा के लिए हम लोग गाते हैं। और कई बार हमें आवाज आता है कि ये छोड़ दे, परमेश्वर के लिए वो चीज छोड़ दे, वो टैलेंट जो परमेश्वर ने दिया है। कई बार जो है हम वेल्थ जो हम लोग कमाते हैं, जो हम लोग पैसा जो हम लोग को मिलता है, कई बार हमें आवाज सुनाई देता है कि ये पैसा परमेश्वर के लिए दे दे, या इसको दान दे दे, या इसको छोड़ दे। क्या आप कर पाते हैं? मैं एक सच्चा घटना बताऊंगा, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, जो लोग ये कहते हैं, ये मानते भी है, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं। जेब में कभी कभी हमारे पास जो है 10 रुपीज 20 रुपीज होता है, ये ऊपर के जेब जो आसानी से मिलता है, हम लोग ऑफरिंग दे देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि 100-200 रुपीज होता है, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर बोल रहा है कि इसको ऑफरिंग में डाल दे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। क्या आपने ये कभी एहसास किया है? 100-200 तो ठीक है, अब आपके जेब में 500 रुपीज का भी नोट है। सादा ऑफरिंग्स है, नो थैंक्स गिविंग नथिंग, सादा ऑफरिंग ऐसे चल रहा है, और ये बोझ आ रहा है कि 500 रुपए में ऑफरिंग में डाल दूं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और मैंने बहुत बार ऐसा किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परमेश्वर कह रहा है। और जब परमेश्वर ये कह रहा है, अगर आपको लग रहा है, आपको आभास हो रहा है, एहसास हो रहा है, यू हैव टू गिव दैट। अब्राहम ने यही किया, उसके बच्चे को उसने त्यागना मुनासिब समझा। मैंने भी बहुत बार इस तरीके से ऑफरिंग को दिया, बहुत सारे प्रेयर मीटिंग्स में, हमारे चर्च में, सर्विसेज में बहुत बार ऐसा होता है कि डाल दो, बस ये रखा ऊपर इसलिए शायद परमेश्वर कह रहा है इसको डाल दे। बहुत बार, बहुत बोलते ना, बहुत सारा नोट होने के बावजूद जो है मैं नहीं डाल पाता हूं, और बहुत बार जो है एक ही नोट होता है, 500 हो भले, लेकिन उसको डालना ये बोझ आ जाता है। उस समय पर हमें सोचना ये परमेश्वर मांग रहा है, एंड गॉड
की बातों को जब हम लोग सुनते हैं, आदर करते हैं, परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि ये भी परमेश्वर ने दिया है ना, तो परमेश्वर के लिए देने में क्या हर्ज है। लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं। जस्ट अब्राहम की जगह पर आप रुक कर देखिए कि आपका बहुत ही पसंदीदा चीज परमेश्वर मांग रहा है, और आप जो है क्या करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, परमेश्वर ये तो आपने दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये आप मांग रहे हैं, है ना, नहीं मांग रहे। इस तरीके से हम लोग खुद परमेश्वर को समझाना शुरू करते हैं, हम खुद अपने आप को समझाना शुरू करते हैं। हम बहुत बार आर्ग्यू कर देंगे, हम बहुत बार जो है डिसएग्री करेंगे, हम बहुत बार परमेश्वर से शायद फ्रस्ट्रेट होकर जो है हम लोग लड़ेंगे भी। बट अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, ही वॉज वेरी ओबीडियंट। और मैं कुछ बातों को कहूंगा, कुछ आदतें हमारे जीवन में होता है। जब बेस्ट एग्जांपल है लेजर टाइम, आपका लेजर टाइम यानी आपका फन लविंग टाइम, आप मजा करने का समय। बहुत बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि हम लोग मजा करने बैठे हैं, सर एंजॉय करना है, कुछ गेम खेलना है, और परमेश्वर का आवाज हमको सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर बोल रहा है नहीं ये छोड़ और परमेश्वर के साथ समय बिता, मेरे साथ समय बिता, प्रार्थना कर, बाइबल का वचन पढ़। क्या कर सकते हैं हम लोग उस समय पर? नहीं यार, ठीक है ये करेंगे हम लोग, उसके बाद देखते हैं, रात को हम लोग प्रेयर कर लेंगे। That time God is calling to you, my dear friends. वो समय पर परमेश्वर बुला रहा है, और हमें वो समय को परमेश्वर को देना जरूरी है। That is the test of God. वो परमेश्वर की परीक्षा है। वो क्या नोट पड़ा हुआ है, वो नोट का वैल्यू परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर के हम लोग इसको कितना वैल्यू दे रहे हैं ये जानना जरूरी है। मेरे मजे के टाइम में परमेश्वर मुझे बुला रहा है, क्या मैं छोड़ सकता हूं? मैं टीवी देख रहा हूं, बहुत लोगों को टीवी देखने का आदत है, मैं भी बहुत टीवी देखा हुआ इंसान हूं। आज इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन सच में जस्ट इमेजिन करो, कभी आपके साथ हुआ है, मैं टीवी देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूं, बहुत अच्छा पिक्चर सीरियल चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, परमेश्वर बोल रहा है थोड़ा टाइम बाइबल पढ़ ले, थोड़ा टाइम प्रेयर कर, उसी समय पर जो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा है। क्या हम लोग छोड़ पाते हैं उसको? नहीं, खत्म करके जाता हूं ना। गॉड इज टेस्टिंग यू माय डियर फ्रेंड्स। अगर जब कभी ऐसा लगे, अब्राहम को याद करना, उसने क्या किया जब उसको आइजक बलिदान देने के लिए बोला, उसके एक जो इतने साल के बाद उसको पुत्र मिला, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने डायरेक्ट दे दिया। और हम लोग जो है अपना मजा, परमेश्वर ने जो आशीष दिया वो परमेश्वर ने ही दिया है। लेजर टाइम, आज लॉकडाउन में कितना समय परमेश्वर ने दिया, कितना समय हम वेब सीरीज देखते हैं, कितना समय हम टीवी देखते हैं, कितना समय हम खाना बनाते हैं, नए नए पकवान को सीख रहे हैं, कितना समय हम लोग वो टकाटक या टिकटॉक के वीडियोस हम लोग बनाते हैं, कितना समय हम लोग स्टेटस रखने में जो है, स्टेटस देखने में हम लोग बिजी है, फेसबुक में हम लोग बिजी है, कितने समय हम लोग जो है सर्चिंग में बिजी है, वेब सर्च में बिजी है। वो समय परमेश्वर ने, शायद आपको आवाज आ रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। दिस इज व्हाट इज द टेस्ट ऑफ गॉड। इफ यू वांट टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम, यू नीड टू पास दैट टेस्ट। अब्राहम को क्या ब्लेसिंग मिला पता है? अंत में जाकर उसने एक डायलॉग बोला है जो आज तक हम प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं, और यहोवा परमेश्वर का वो नाम है, द लॉर्ड इज द प्रोवाइडर, यहोवा जायरा। उस समय पर जो है अब्राहम ने वो नाम लिया परमेश्वर का, यहोवा जायरा। इसका मतलब है द लॉर्ड provides, the Lord is our provider। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ त्याग देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, उसके बदले में परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से भर देता है। हो सकता है आपने, बोलते ना, जो सीरियल के लिए, जो प्रोग्राम के लिए, जो आपकी इच्छा के लिए, जो आपके टैलेंट के लिए, जो आपके हॉबी के लिए आपने जो है छोड़कर परमेश्वर के पास गए, वो हॉबी में जो है आपको परमेश्वर और चैंपियन बना देगा। यस, जो भी चीज हमें वैल्यूएबल लगती है, अगर परमेश्वर की आवाज को हम समझ सकते हैं कि वो बोल रहा है कि नहीं, इसको छोड़कर ये समय मेरे साथ बिता, अगर हम लोग वो दे देते हैं, वी विल गेट द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम एंड वी कुड से द लॉर्ड इज माय प्रोवाइडर। क्योंकि ये भी परमेश्वर ने दिया है, और ये परमेश्वर को रिटर्न देने से परमेश्वर हमें और डबल ब्लेसिंग्स परमेश्वर देने वाला है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इसको एक्सपीरियंस किए हैं, कितने लोग इसको विश्वास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर शायद आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे इन वचन से बात कर रहा है।
आप अपने समय को परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को परमेश्वर को वापस नहीं दे पा रहे हैं। यू आर फाइटिंग विद गॉड। नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर नहीं बोल रहा है। अब बहुत बार ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर का आवाज़ कैसे हो सकता है। आपको पता है ये परमेश्वर कह रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि आप नहीं चाहते वो मैं छोड़ दूं। आपको इतना ज़्यादा वो पसंद है कि मैं नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए आप बोलते कि परमेश्वर नहीं कह रहा है। ये और कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ आपको ही मालूम है कि ये परमेश्वर ही कह रहा है। यस, मैं कोई बोलते ना गलत आदतों के बारे में या बुरे बातों के बारे में नहीं, मैं आज फोकस कर रहा हूं अच्छी चीजों के ऊपर, विच इज अ ब्लेसिंग इन आवर लाइफ्स। अब्राहम ने अपने ब्लेसिंग्स को परमेश्वर के लिए त्याग दिया और परमेश्वर से एक दूसरा ब्लेसिंग लेकर आया। आज अगर हम अपने ब्लेसिंग्स को, अपने अच्छे समय को, अपने चीज़ों को परमेश्वर के लिए त्यागते हैं तो परमेश्वर उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों का ये गवाही है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसने वो 500 का नोट अगर ऑफरिंग में डाल दिया है तो कहीं गादी के नीचे, कहीं तो बैग के अंदर से जो है उसको 500 के 2 नोट मिले हैं, जो उसको पता भी नहीं था। यस, ये गवाही है बहुत लोगों का। बहुत लोग, मैं एक की नहीं बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों से ये सुना है और ये सच्चाई है। परमेश्वर हमारे जीवन में देता है अगर हम परमेश्वर के लिए देते हैं। आप नहीं दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अब्राहम अगर वो नहीं देता तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बच्चा होता, लेकिन वो ब्लेसिंग्स को खो देता। टुडे अब्राहम इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ गॉड। अब्राहम इज कॉल्ड द फादर ऑफ फेथ। विश्वास का पिता वो कहलाता है। आज भी अब्राहम का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। अब्राहम को वो नाम मिला परमेश्वर का, द लॉर्ड प्रोवाइड्स। उसने एक्सपीरियंस किया। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का वो प्रोविजन, परमेश्वर का वो सामर्थ्य वाला जो परमेश्वर देता है उसको अनुभव करना चाहते हैं तो हमको सीखना है कि परमेश्वर के लिए मैं क्या दे रहा हूं, परमेश्वर के लिए मैं क्या सरेंडर कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए मैं क्या त्याग रहा हूं। वॉट आर यू सैक्रिफाइसिंग फॉर द लॉर्ड? गॉड का आवाज तो आप तक आ रहा है, लेकिन आप उसको रेस्पॉन्ड सही रीति से नहीं कर पा रहे, आज तक नहीं हुआ है, तो दिस इज योर टाइम माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है ये छोड़कर मैं परमेश्वर के साथ समय को बिताऊं, यू हैव टू डू इट। पता नहीं कितने लोग संडे सर्विस में अपने टाइम को दे रहे हैं, बट वही समय हम लोग टीवी को देख रहे हैं, वही समय हम लोग अनेक कार्य को कर रहे हैं। आपको आवाज आ रहा है क्योंकि आप भी विश्वासी है, आप भी क्रिश्चियन हैं, आप भी मसीह को जानते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर रहे हैं क्योंकि आप वो परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। यू विल नॉट गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम इफ यू वांट टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम। तो आपको जो है वो चीजें परमेश्वर के लिए त्यागना जरूरी है और आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से जो है वो नया तोहफा, नए आशीष को पाएगा। जब अब्राहम जो है ऊपर गया, वो नीचे मरे हुए बच्चे के साथ नहीं आया, वो बच्चा परमेश्वर ने उसको लौटा दिया। लेकिन जब गॉड टेस्ट करता है तो उसको देना जरूरी है। बाद में परमेश्वर क्या देगा ये परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। आज भले आपसे परमेश्वर अपनी संतान को नहीं मांग रहा है, लेकिन आपका बहुत सारा हॉबी, टैलेंट, वेल्थ, आपका लेजर टाइम, आपका बहुत सारा समय जो ऐसे ही जा रहा है या बहुत ही अलग चीज़ों में हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं, वो परमेश्वर मांग रहा है। शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा है वैसा समय, वो समय वैसा बिताना, लेकिन हो सकता है परमेश्वर की आवाज़ भी आपको आ रही है कि मैं परमेश्वर का वचन पढूं, मैं प्रार्थना करूं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द डे यू हैव टू रियलाइज कि परमेश्वर बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, परमेश्वर आपकी परीक्षा को ले रहा है। वो कहकर, ये मेरे जीवन में मैंने कुछ दिन पहले ही अनुभव किया और मैंने एक डिसीजन लिया है कि सच में मैं उससे पार पाऊंगा और सच में परमेश्वर का आशीष को मैं देखूंगा। ये मेरा विश्वास है। जब मैं परमेश्वर को कुछ दे दूंगा या कुछ मेरा पसंदीदा चीज मैं छोड़ दूंगा या उसको मैं प्राथमिकता, प्रायोरिटी दूंगा और उसके बाद उस चीज को मैं देखने वाला हूं, तब परमेश्वर मुझे और बड़ा आशीष को देगा। दिस इज माई फेथ, दिस वॉज द फेथ ऑफ अब्राहम। और वो ब्लेसिंग आपके जीवन में भी आ सकता है इफ यू कैन सैक्रिफाइस योर वैल्यूएबल थिंग, योर वैल्यूएबल टाइम, जो चीज आपको पसंद है परमेश्वर के लिए वो देना। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು. ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಗುಡ್ಡವ ದಾಟ ಮಾಡಿದಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಪಡಿಸಿ ಆದರಣೆ ನೀಡಿದಿ. ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಗುಡ್ಡವ ದಾಟ ಮಾಡಿದಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಪಡಿಸಿ ಆದರಣೆಯ ನೀಡಿದಿ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು. ಆಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯವ ಮಾಡಿದಿ, ವೈರಿಯು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ. ಆಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯವ ಮಾಡಿದಿ, ವೈರಿಯು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು. आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना को करेंगे। अगर इस हफ्ते कोई अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं, मैं चाहूँगा अपने स्थानों पर अगर आप खड़े रहेंगे तो आपके लिए विशेष प्रार्थना हम करेंगे।
ಯಾರಾದರೂ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಜದಿ ರಾಜದೇ, ದೇವದಿ ದೇವನೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇವರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಕರ್ತನೆ. ಇಂದಿನದ ವಚನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಬ್ರಾಹಮನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆತನು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಜೈವಂತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂಥ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವರದಾನಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕರ್ತನೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿರು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರ್ತನೆ ಆ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವಾ ಜೈರ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಪಾರವಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕರ್ತನೆ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ, ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೋದ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀನು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ನೂತನವಾದ ವರ್ಷ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಆನಂದಗಳನ್ನು, ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ವಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕಳೆಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೇವರನ್ನಾಗಿರು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ, ಜಾಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರೈಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿರು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಸಹಾಯತೆ, ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಾರದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ವಚನದಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು
ನೂತನವಾದ ಒಂದು ಸಂಜೀವನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆ ರಿವೈವಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮುಂದಿನೆಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವಿರುವುದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಜೈ ಕ್ರಿಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸಭಿಕೋ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.